اور جس طرح سے کل راجیہ سبھا پولز ہوئے ہیں تو ان پر ووٹ چوری کا الزام لگ رہا ہے، ہارس ٹریڈنگ کا الزام لگ رہا ہے، بارگیننگ کا الزام لگ رہا ہے، تو آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ میں اس انفارمیشن میں بالکل پریوی نہیں ہوں کہ کس نے ووٹ ڈالا ہے، کس نے کراس ووٹنگ کی ہے۔ اب آج کے بیان سے پتہ چلا ہے کہ چیف منسٹر نے جو کہا کہ انہیں شاید پتہ ہے مگر وہ نام بتانا نہیں چاہتے، تو اس سے ایک بات تو ثابت ہوئی کہ انہیں یہ بات پتہ ہے کہ انہوں نے کراس ووٹنگ کی ہے۔ اب یہ کوئی ذاتی دکان نہیں چل رہی ہے کہ یہاں پہ آپ ایک دوسرے کا نام نہ بتائیں، یہ پبلک پراپرٹی ہے۔ آپ کا لوگوں کے ساتھ اعتماد لوگوں کے ووٹ کی بنیاد پہ جڑا ہوتا ہے، تو لیجسلیٹر، ایم ایل اے اسمبلی میں یا اس طرح کے ووٹنگ کے وقت ووٹ کے ساتھ کیا کرتا ہے وہ پبلک انفارمیشن میں آنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور اگر کسی کو اس بارے میں پتہ ہے، جیسے کہ چیف منسٹر نے کہا ہے کہ اسے پتہ ہے مگر وہ نام نہیں لے گا، میں پھر سے کہوں گا یہ کوئی پرائیویٹ افیئر نہیں چل رہا ہے کہ وہ نام نہیں لیں گے۔ اگر اس طرح کا بیٹریل ہوا ہے، اس طرح کی زیادتی ہوئی ہے، لوگوں کے مینڈیٹ کے ساتھ، لوگوں کے اعتماد کے ساتھ، لوگوں کے ریپرزنٹیٹیو نے غلط ووٹ ڈالا ہے یا غلط طاقتوں کو ووٹ ڈالا ہے، انہیں بتانا چاہیے۔ جب تک وہ نہ بتائے تب تک سب کے سب شک کے دائرے میں رہیں گے، بے گناہ بھی شک کے دائرے میں رہیں گے۔ کم سے کم یہ تو پتہ چلے کہ بے گناہ کون ہے، اور یہ بھی ساتھ ساتھ پتہ چلے کہ لوگوں کے اعتماد کے ساتھ زیادتی کس نے کی ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ وہ اس بارے میں بتائیں گے، اور اس کو کوئی پارٹی افیئر، پرائیویٹ افیئر نہیں بتائیں گے۔ یہ انفارمیشن پبلک پراپرٹی ہے، لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے۔ جس طریقے سے اس راجیہ سبھا الیکشن میں ہم نے دیکھا نیشنل کانفرنس، کانگریس، پی ڈی پی، ایون کہ اے آئی پی نے بھی سپورٹ کیا ہے ایک پلیٹ فارم پر الیکشن کو لے کے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جو باقی ایجنڈاز ہیں جموں کشمیر میں انکلوڈنگ اسٹیٹ ہو یا جتنے بھی ایبروگیشن کے بعد یہ ان ایجنڈاز کو لے کے سیم ایسے ہی ایک پلیٹ فارم کی ضرورت ہے؟ وہی تو میرا رونا ہے کہ ہماری جو سروائیول کی لڑائی ہے، ایگزسٹنس کی لڑائی ہے، اس کے لیے ہم کب سنجیدہ ہوں گے، اور اس کے لیے ہم کب اس طرح کی کوشش کریں گے۔ پارٹی لیول پہ، پارٹی سطح پہ لڑنا ٹھیک ہے، پارٹی پالیٹکس کرنا ٹھیک ہے، اور یہاں پہ کلیکٹیو سروائیول کی بات ہو رہی ہے۔ تو کلیکٹیو سروائیول کے لیے جتنی بھی لائک مائنڈڈ پارٹیز ہے یا لائک مائنڈڈ لوگ ہیں، میں نہیں کہوں گا کہ پارٹیز، انہیں ایک کلیکٹیو جو ہے لڑائی چھیڑنی پڑے گی۔ اور ایک بات اس سے بھی زیادہ اہم ہے، جموں کشمیر کے لوگوں نے اس سب کو بالائے طاق رکھ کے، ان سبھی سوالوں کو بالائے طاق رکھ کے ایک پرٹیکولر پارٹی کو میجورٹی کے ساتھ ایک مضبوط مینڈیٹ دیا تھا کہ اس کے بعد آپ کو کسی کی شاید ضرورت بھی نہ پڑے۔ امید یہ تھی کہ لوگوں کی شاید اس کنفیوژن سے ہم دور نکلیں گے، ان ڈویژن سے ہم دور نکلیں گے، ایک ہی پارٹی کو ایک اسٹرانگ مینڈیٹ دیں گے، اور وہی پارٹی جو ہے ہماری لڑائی لڑے گی۔ اب بدقسمتی یہ ہے کہ ایک سال ہوا، اور ایک سال کے اندر جو مینڈیٹ دیا گیا تھا، جو پولیٹیکل مینڈیٹ، ایسپریشنل مینڈیٹ دیا گیا تھا اس پارٹی کو، نیشنل کانفرنس کو، تو اس سینٹیمنٹ، اس مینڈیٹ پہ کام نہیں کیا گیا جس طرح سے کام کیا جانا چاہیے تھا۔ تو اسی وجہ سے آپ جیسے لوگ، ہم جیسے لوگ، ہر کوئی یہ سوال ضرور کرے گا، اگر آپ کو یہ لڑائی نہیں لڑنی ہے تو پھر ووٹ لیتے وقت ہم نے یا پارٹی نے اس طرح کی باتیں کیوں کی تھی؟ ٹھیک ہے، اگر آپ ووٹ لے کے بھی، یہ اس طرح کا مینڈیٹ لے کے بھی کمزور پڑ رہے ہیں تو ظاہری بات ہے، سوال ہوں گے کہ آپ دوسروں کو بھی جوڑیے، ورنہ جموں کشمیر کے لوگوں نے آپ کو دوسروں کا محتاج نہیں رکھا تھا، دوسروں کو جوڑنے کی ضرورت اب نہیں تھی شاید اسمبلی الیکشن کے بعد، مگر آپ نے وہی کارنامے کرنا شروع کیا جو ان لوگوں نے اس الیکشن سے پہلے کیا۔ تو اس لیے لوگ تو آلٹرنیٹیوز ڈھونڈیں گے کہ اگر اس پارٹی نے جس کو مضبوط مینڈیٹ دیا گیا وہ یہ کام نہیں کر رہی، وہ یہ لڑائی نہیں لڑ رہی ہے، تو اس ایگزسٹنس کی لڑائی کے لیے لوگ آلٹرنیٹیوز ڈھونڈیں گے۔ یہ قوم جموں کشمیر کی نیشنل کانفرنس کی محتاج نہیں ہے، کانگریس کی محتاج، بی جے پی کی محتاج نہیں ہے۔ اپنے وجود کی لڑائی کے لیے یہ ہمیشہ آپشنز ڈھونڈتے رہیں گے، یہ اپنے وجود کے لیے لڑیں گے۔ تو کسی پارٹی کو یہ خیال ہو، گمان ہو کہ ہم ہی ہے اور ہمارے ہی آس پاس سب کچھ گھومتا ہے، نہیں، یہ وجود کی لڑائی ہے۔ تو پھر سے یہی بات کہوں گا کہ اگر انہوں نے مینڈیٹ کا احترام رکھا ہوتا، آج ان سے کوئی سوال نہیں پوچھتا کہ دوسروں کو آپ جوڑ کیوں نہیں رہے، چونکہ لوگوں نے اعتماد دیا، اس اعتماد پہ ابھی تک کام نہیں ہوا، وہ لڑائی ابھی تک نہیں چھڑی۔ اب لوگ یہ کہنا شروع کریں گے کہ اگر آپ کمزور پڑ رہے
तो दूसरों को साथ में लेके क्यों नहीं चल रहे इस लड़ाई के लिए? बड़गाम बाईपास को लेकर जो है लगातार आपकी पार्टी के लीडरान कह रहे हैं कि अगर कहीं पर इख्लाफात है वो खत्म हो चुके हैं और आगा साहब जल्द ही जो है अवामी तशहीर का हिस्सा बनेंगे। अब ये मेरा फैसला लेना लोगों ने कब से शुरू किया? मैं रोज़ मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए ऐसे फैसले सुनता हूँ अपने बारे में जो मैंने खुद लिए नहीं होते। अब मुझे कभी लगता है कि एक रूहुल्ला मैं हूँ, शायद एक और रूहुल्ला दूसरा कोई मेरे नाम पे कहीं और घूम रहा है जो फैसले लेता है। अब मैं उस रूहुल्ला की तलाश में हूँ जो इस तरह के फैसले लेता है। मैंने इस तरह की ना कोई बात की है, ना इस तरह का कोई स्टेटमेंट गया है। मेरा स्टेटमेंट वही है जो मैंने पिछली बार इलेक्शन से पहले, नॉमिनेशन से पहले, इलेक्शन अनाउंस होने के बाद, अभी किसी ने नॉमिनेशन फाइल नहीं किया था, उसी दौरान ये बात कही थी कि मुझे अपनी तंजीम ये बात बताए कि मैं आज के इलेक्शन में लोगों के सामने क्या बात लेके जाऊं, किस एतमाद से जाऊं, जिसके जवाब में लोगों से मैं शायद वोट हासिल करूं। मुझे वो बातें बताइए कि एक साल में हमने पिछले मैंडेट पे, पिछले एतमाद पे, पिछले वोट पे या पिछले वादों पे इतना सारा काम किया है। बाकी आप रूटीन गवर्नेंस छोड़ दीजिए, पॉलिटिकल जो हमारी एस्पिरेशन है, पॉलिटिकल एजेंडा जो है इस रियासत का, जो वजूद की लड़ाई है, उसके लिए हमने इस साल के दौरान इतना किया है तंजीम ने। मेरी अकेले की बात आप छोड़ दीजिए, आप वो एक बात बता दीजिए कि इतना कुछ हमने किया है। मैं उस बात को लेके लोगों के सामने फिर से जाऊंगा। एक साल पहले आपसे वोट लिया था, इतना काम हमने उस पर किया है, इतनी लड़ाई हमने उस पर लड़ी है। अब एक साल के बाद मेहरबानी करके फिर से आप अपना एतमाद दीजिए। अभी तक मुझे कोई जवाब नहीं मिला। अच्छा, एक कम से कम इंटेंशन तो दिखाइए। वो लड़ाई दूर की बात है, वो 370 की लड़ाई जो बहुत ज़रूरी है, वजूद की लड़ाई वो बहुत ज़रूरी है। अभी इलेक्शन से पहले 2-4 दिन में एक काम तो आप कर ही सकते हैं जिससे इंटेंशन पता चले कि आप सीरियस है, आपका इंटेंशन है। रिजर्वेशन का मसला हल कीजिए, वो आपकी लेवल पे इस वक्त हल हो सकता है। तो मैंने ये कहा था कि 3 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन नॉमिनेशन से पहले आप रिजर्वेशन का जो मामला आपने इतना खींचा है, जो हम सभी का है, आप बच्चों के साथ लड़ाई कर रहे हैं। इससे बड़ी बदकिस्मती की बात क्या हो सकती है? बच्चों के साथ लड़ रहे हैं, जिन बच्चों ने कल 1 साल पहले, या जिन बच्चों के पेरेंट्स ने, लोगों ने, सब ने एतमाद दिया आपको, इसलिए कि आप इस सख्ती के माहौल में, इस क्राइसिस के माहौल में आप हमें सुनेंगे, आप हमारे मसले के लिए एक कांधा बनेंगे। आप उनके साथ लड़ रहे हैं, आप उन्हें ये बता रहे हैं कि मैं किसी के दबाव में आने वाला नहीं हूं, मैं किसी के प्रेशर में आने वाला नहीं हूं। आपको प्रेशर में लाने के लिए वोट दिया गया है ताकि आप प्रेशर में आए, आप सुने। डेमोक्रेसी में जो लोगों के प्रेशर में आता है वो उरूज पाता है। जो डेमोक्रेसी में लोगों को तकब्बुर दिखाता है उसका वजूद खत्म हो जाता है, उसे ही डिक्टेटर कहते हैं। अगर हाकिम को लोगों के प्रेशर में नहीं आना है तो एलजी तो खूब था, बेहतर था, क्योंकि वो भी किसी के प्रेशर में आने वाले नहीं है। उनका काम ही है किसी के प्रेशर में नहीं आना। लोगों के जेन्युइन, बात जेन्युइन की है, लोगों के जेन्युइन बात और डिमांड के प्रेशर में आना, ये एक ईमानदार और लोगों को दोस्त रखने वाला, लोगों का हमदर्द, ये एक अवाम दोस्त कायद की सलाहियत है। वो इलेक्शन से पहले हम अपनी जो है टोपिया तक लोगों के सामने डाले और लोग इलेक्शन के बाद उन्हीं लोगों से कहे कि मैं किसी के प्रेशर में आने वाला नहीं हूं, मैं लोगों के प्रेशर में आने वाला नहीं हूं। तो मैंने इतनी बात कही थी कि कम से कम ये आपके हाथ में है, रिजर्वेशन का मसला आपके हाथ में। 3 दिन के अंदर अंदर आप ये मसला हल कर सकते हैं। कोई तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर हो जिससे लोगों के सामने एतमाद से बात की जाए। उस पर भी आपने देखा लड़ाई हो रही है। आप आज मुझे बताइए, मैं उसी बात पे हूँ, मुझे उस बात का जवाब नहीं मिला, रिजर्वेशन का मसला हल नहीं हुआ, लड़कों को, स्टूडेंट्स को धमकियां मिली कि हम आपके प्रेशर में आने वाले नहीं है। अगर वहां से ये जवाब मिलता है तो मैं लोगों के सामने क्या लेके जाऊं? अच्छा, रूटीन गवर्नेंस पे मैं बड़गाम के सामने जाऊं, लोगों के सामने जाऊं, क्या बोलने जाऊं कि 1 साल पहले हमने आपसे कहा था कि मीटर्स जो है हम दरिया में फेंक देंगे, मीटर आपके साथ ज्यादती है। और 1 साल के बाद हमने आपसे वोट लिया और अब हम 1 साल के बाद उसी जुबान से ये कहते कि चूंकि मेरे घर में सभी लोग मीटर का इस्तेमाल करते हैं, अब आप भी मीटर का इस्तेमाल करो। ये बात लेके जाऊं मैं लोगों के सामने। अब इनके शायद ज़मीर में इस तरह का प्रोविजन हो सकता है कि हम एक दिन एक तरह की बात करें, दूसरे दिन दूसरे तरह की बात करें। मगर मैंने जहाँ से दीन की तालीम हासिल की है, मैंने जहाँ से ज़मीर की तालीम हासिल की है, वहाँ पे आप
यही सीखते हैं इन्नल अहद कान मसूला, कि आपसे आपकी बातों के बारे में सवाल पूछा जाएगा, आपसे आपके वादों के बारे में सवाल पूछा जाएगा, आपको जिम्मेदार ठहराया जाएगा। आप एक ज़ुबान से एक बात और उसी ज़ुबान से दूसरी बात, एक ज़ुबान से आप ये कहे कि 1 साल पहले आप मीटर आपके खिलाफ जुल्म है, आपके खिलाफ लड़ाई है, आप हमें वोट दे दीजिए, हम मीटरों को दरिया में फेंक देंगे। अब आप चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं, अब 1 साल के बाद आप ये कहेंगे कि चूंकि मेरे घर में सभी मीटर का इस्तेमाल करते हैं, अब आप लोगों को भी मीटर का इस्तेमाल करना चाहिए। मीटर के खिलाफ कोई नहीं है, मगर पहले आप लोगों की इक्तिसादियात को उस सतह पर ले आइए, लोगों की इक्तिसादियात में उस तरह की बेहतरी ले आई है। कौन मीटर के खिलाफ है? मैं भी समझता हूँ, आप भी समझते हैं, हर कोई समझता है, मगर आपने इस तरह की कौन सी बेहतरी लाई है 1 साल में? अब उनकी बात छोड़ दीजिए, मैं लोगों के सामने क्या लेके जाऊँ? यही कहूँ कि 1 साल पहले हमने ये कहा था कि मीटर फेंक दीजिए, 1 साल के बाद हम ये कह रहे हैं कि चूंकि मेरे घर में भी मेरे रिश्तेदारों के घर में मीटर है, इसलिए आप भी मीटर का इस्तेमाल कीजिए। तो पॉलिटिकल सतह से लेके लोकल गवर्नेंस की सतह तक इस तरह की कोई कंसिस्टेंसी नहीं है पिछले 1 साल से लेके अभी तक, जिसको लेके मैं लोगों के सामने जा सकूं। तो इसलिए मेरी बात वही है कि मैं इस इलेक्शन से दूर हूं। लोग खुद अपने वोट के हाकिम भी है, मालिक भी है, वो खुद कजावत कर सकते हैं सही क्या है, गलत क्या है। मैं इस सब के बीच में वो वकालत करने नहीं जाऊंगा जो वकालत इस नतीजे पे पहुंचेगी। अगर साहब अभी कुछ देर पहले आपने ट्वीट किया अपने लोकल हीरोज को कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, जी, क्या हम ये समझे आगा साहब अब सोच रहे हैं एक नई पार्टी बनाने कश्मीर में? मैंने एक सिंपल ट्वीट किया कि आपके आसपास लोकेलिटी में कौन से ऐसे लोग हैं जो आपको मुतासिर करते हैं, जिनको देख के आपको एक कॉन्फिडेंस मिलती है, जिनको देख के आपको इंस्पिरेशन मिलती है। वो अलग अलग फील्ड्स में हो सकते हैं, कल्चरल फील्ड्स में हो सकते हैं, रिलीजियस फील्ड्स में हो सकते हैं, कोई मुलाजिम हो सकता है, कोई बिजनेसमैन हो सकता है, कोई आर्टिस्ट हो सकता है। किनको देखते आप मुतासिर होते हैं, किनको देख के आपको लगता है कि इसको देख के एक इंस्पिरेशन मिलती है? मैंने सिंपल एक सवाल पूछा। उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर के लोग उन लोगों के बारे में बताएं, उनको सेलिब्रेट करें जो हमारे इस तरह के लोग, गुमशुदा लोग हैं, जिनकी सोसाइटी को ज़रूरत है और जिनका रोल बनता है कि वो सोसाइटी में उससे भी ज़्यादा करे, जिनके हाथ में सोसाइटी का किसी भी सतह पे एतमाद हो और उस एतमाद के साथ ज्यादती ना करे, हम उनको सेलिब्रेट करें। इतना ही तो हम कर ही सकते हैं ना कि जो अलग अलग गोशों में गुमशुदा लोग हैं उनको सतह पे लाए, जो ईमानदार हो, जो खुदा दोस्त हो, जिनके पास ज़मीर हो, इंटीग्रिटी हो, और जो ऑलरेडी हमारे हीरोज़ हैं उनको थोड़ा सा हम सेलिब्रेट भी करें। शुक्रिया। बिल्कुल, ये थे सईद आगा रूहुल्लाह मेहदी। तो काफ़ी लंबे अरसे के बाद इन्होंने मीडिया से खिताब किया और इन्होंने फिर एक बार जो है अपना अज़म दोहराया कि वो अपने वादे पर या अपनी बात पर जो है अपने मौके पर डटे हुए हैं कि वो बडगाम बाई इलेक्शन से दूरी बनाए रखे हुए हैं। और उन्होंने उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली सरकार से सवाल भी किया, या फिर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उनसे सवाल किया कि वो लोगों के पास क्या एजेंडा इस बार लेके जाएंगे, इसलिए वो बडगाम बाईपोल से किनारा कशी ही इख्तियार कर रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी उमर अब्दुल्ला को कहा कि वो अगर उन लोगों का नाम जानते हैं जिन्होंने कल क्रॉस वोटिंग की है तो उन नामों को मंजर आम पर लाना ज़रूरी है, क्योंकि ये प्राइवेट अफेयर नहीं है बल्कि लोगों के हवाले से जो है लोगों का मसला जो है या लोगों के हवाले से जो राय कायम होनी चाहिए थी या लोग इसका जो है जवाब भी तलब करते हैं। तो इस हवाले से उमर अब्दुल्ला को उन नामों को जाहिर करना चाहिए जो नाम वो जानते हैं और उसको किसी न किसी वजह से पस पर्दा रखना चाहते हैं। अयूब खान के साथ न्यूज़ 18 के लिए सिरनर से मुदस्सर कादरी।